Hello class 3, Assalamu alaikum. Today we are going to study comprehension of unit number 9 and its topic is the caterpillar and the butterfly. Okay, let's start our vocabulary. Caterpillar. Caterpillar is the second stage of butterfly. Raised उठाना, juicy cabbage, ताज़ा रस भरी गोभी, थ्रू केजरिए, डेजलिंग चमकती हुई, सेलिंग बाय मुस्कुराती हुई, पाउडर्ड विंग्स खूबसूरत पर, ग्ली खुशी से, नेक्टर रस, पिटी मी मुझ पे तरस खाओ, रूडली गुस्से से, सिट एंड स्टेयर बैठना और घूरना, क्रीप पेट के बल रेंगना, क्रॉल पाँव के बल रेंगना, ग्रब खोदना जांचना, एल्फ बोने, क्वर्ल झगड़ा, गैस क्यास करना अंदाज़ा लगाना, बूझना नाइदर नहीं. So let's start our reading. The caterpillar and the butterfly. A caterpillar green and fat upon a juicy cabbage sat, eating all day through, and when a dazzling butterfly, creamy white, came sailing by, they both said, "How would you do? I hope you like my powdered wings. They are just the very latest things," said butterfly in glee. "And see my tongue so long and curled, the finest one in all the world, a treat for you to see. Poor caterpillar, you can't sip the nectar from a flower's lip, nor fly the summer through." The caterpillar raised his head. "Don't pity me," he rudely said. "I am better off than you. I eat all day, I sit and stare, I want not flying through the air, I like to creep and crawl, a butterfly I had hate to be. It's best to be a grub like me, a caterpillar small." Then all the elves who listened near laughed like anything to hear the quarrel twist the two, but neither the grub nor butterfly could ever guess the reason why. I know it thou. Do you? Now students, after reading we will discuss activities of unit number 9. So part A is complete the sentences. इस पार्ट में आपको बहुत सी ब्लैंक्स नज़र आ रही हैं, तो आपने इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको चूज़ करना है और इन ब्लैंक्स में पुट करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है. So number 1 is the caterpillar is dash and likes to eat. तो अब फर्स्ट में क्या आएगा? The caterpillar is green and fat and likes to eat cabbage. Okay. Number 2, the butterfly has pretty wings and can fly. Okay. Number 3 is the caterpillar sat upon a juicy cabbage. Number 4, the caterpillar thinks that it is not good to be a butterfly. Number 5, the elves are laughing at the caterpillar and butterfly. Number 6, the elves know that a caterpillar is a young butterfly. Okay. Part B. It's very easy and very interesting part. What do you think? आप क्या सोचते हैं? Do you like the poem? Yes, no, why? अगर आपको पसंद है तो उसको टिक करें, नहीं पसंद तो नो पे करें और साथ में अपने रीज़न बतानी है. ठीक है. Yes, I like the poem. Why? Because it's very interesting. नंबर 2 पे कह रहे हैं टिक 2 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द कैटरपिलर. हमने इन दिए गए वर्ड्स में से 2 वर्ड्स को चूज करना है जो इस कैटरपिलर को डिस्क्राइब करते हों. ठीक है. इट्स अप टू यू. जो आपको पसंद हो, जो आपको लगता है कि जो कैटरपिलर की पर्सनैलिटी को सूट करते हैं उनको आपने टिक करना है. ठीक है. नंबर 3 टिक 2 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द बटरफ्लाई. अब आपने बटरफ्लाई की पर्सनैलिटी के ऊपर बताना है कौन से 2 वर्ड जो हैं उसको उस पर सूट करते हैं. ठीक है. You will do it by yourself. Write the line from the poem that you like the most. और अपनी फेवरेट लाइन आपने यहाँ पे लिखनी है. पार्ट सी, इमेजिन. फिनिश द पिक्चर एंड कलर देम. ये पिक्चर हाफ दी गई हैं, आपने इनको कंप्लीट करना है और इनको अच्छे से कलर करना है. ओके.
So now students, we will discuss language of unit number 9. Part A is write sentences, use the words. अब यहाँ पे उन्होंने 6 सेंटेंस वर्ड्स बताए हुए हैं, ठीक है। ये 2 वर्ड्स इन्होंने दिए हुए हैं जिनको हमने सेंटेंस में यूज़ करना है और इसको कंप्लीट करना है। द फर्स्ट वन इज कैटरपिलर और बटरफ्लाई। अब इसका हमने सेंटेंस बनाना है, तो आपने बहुत ध्यान से इसको सुनना है। द कैटरपिलर टर्न्ड इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। नंबर 2, सन dazzling. The dazzling light of sun does not allow you to open your eyes. Number 3, caterpillar cabbage. The caterpillar ate the juicy cabbage. Number 4, crawl leaf. The caterpillar crawled on the leaf. Number 5, butterfly wings. The butterfly has beautiful colored wings. And the last one is summer fun. In summer it is great fun on the beach. So part B is टिक द करेक्ट बॉक्सेस। अब हमने इनकरेक्ट बॉक्स के ऊपर टिक करना है, ठीक है। कैटरपिलर्स कैन क्रीप, क्रॉल, फ्लाई, डांस। अब कैटरपिलर क्या क्या काम कर सकता है, जो काम वो कर सकता है उसको हमने टिक करना है। कैटरपिलर कैन क्रीप, यस। क्रॉल, यस। फ्लाई, नो। डांस, नो। बटरफ्लाई, नंबर 2 है बटरफ्लाईज कैन स्विम, नो। फ्लाई, yes. Sing, no. Dance, no. Okay. Number 3, babies can creep, no. Crawl, yes. Fly, no. Hop, no. Number 4, I can. अब ये आपने अपने बारे में बताना है कि आप क्या कर सकते हैं। I can swim, अगर आप स्विम कर सकते हैं तो उसको टिक करें। I can fly, no. I can read, yes. I can write, yes. Okay. पार्ट सी, ऑल अबाउट मी। अब ये भी आपके अपने बारे में है, ठीक है, कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, आपकी विश क्या है, फेवरेट इंसेक्ट क्या है, आपको क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताने लगी हूँ। आई कैन स्केट बट आई कैन नॉट स्विम। आई विश आई कुड स्विम। माई फेवरेट इंसेक्ट इज द लेडी बर्ड। एन इंसेक्ट आई एम स्केयर्ड ऑफ इज द कॉकरोच। The insect I see most often is the fly. Okay? अब यहाँ पे उन्होंने बोला है draw an insect that scares you. यहाँ पे आपने उस इंसेक्ट की पिक्चर बनानी है जिससे आप डरते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कॉकरोच। तो अगर आप कॉकरोच से डरते हैं तो यहाँ पे आपने कॉकरोच को ड्रा करना है और उसमें कलर करना है। ओके। So class 3 after language we will discuss grammar of unit number 9 and it's about डिग्रीज, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 3 डिग्रीज बताई हुई हैं। पहली को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, दूसरी को हम कंपैरेटिव कहते हैं और तीसरी को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, ठीक है। तीनों के अलग-अलग फंक्शन है, हमने इसको कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। नंबर 1 बिग है, ठीक है। द स्वीट इज बिग, कह रहे कैंडी बड़ी है। द बिस्किट इज बिगर, बिस्किट कैंडी से भी बड़ा है, ठीक है। इन्होंने कैंडी के साथ इसको कंपेयर किया है बिस्किट को, ठीक है। द केक इज़ द बिगेस्ट, और केक इन दोनों चीज़ों से बड़ा है। जब 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री यानी दूसरी डिग्री, सेकंड डिग्री को इस्तेमाल करते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा या सबके साथ कंपैरिजन करना होता है तो हम सुपरलेटिव यानी थर्ड डिग्री को यूज़ करते हैं। और जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं उससे पहले हम हमेशा दाल लगाते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ओवर पार्ट ए, चूज़ एंड राइट। यहाँ बॉक्स में उन्होंने कुछ वर्ड दिए गए हैं। एक्चुअली ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों डिग्रीज हैं जो हमने इन ब्लैंक्स के अंदर फिल करनी है कि कहाँ पे कौन सी सूट करती है। तो पहले उन्होंने साथ हमें हिंट भी दे दिया है कि कहाँ पे हमने कौन सी डिग्री को सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो देखते हैं। नंबर 1 इज क्या है, बिग। अ बाइसाइकिल इज बिग, अ कार इज बिगर, अ बस इज द बिगेस्ट। ओके, बिगेस्ट। ये देखें इसी ब्लॉक के अंदर से हमने वर्ड को चूज करना है। अब ये देखें थर्ड डिग्री है तो साथ ही दा लगाया है। नंबर 2 नॉइजी, अ कार इज नॉइजी, अ बस इज नॉइजियर, अ प्लेन इज द नॉइजिएस्ट, एंड द रेस्ट ऑफ पार्ट यू विल डन इट बाय योरसेल्फ। ओके,
सो ओवर पार्ट बी इज चूज एंड राइट। अब आपने यहाँ पे जो डिग्रीज दी गई हैं उसके अंदर से जो करेक्ट डिग्री है वो आपने उसमें से चूज़ करनी है, ठीक है। जैसे है अ प्रीटी कप, अ प्रीटियर, बिगर कप। अब आपने बताना है इसमें करेक्ट डिग्री कौन सी है। तो यहाँ पे करेक्ट डिग्री आएगी अ प्रीटियर, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट कर दिया पॉजिटिव डिग्री में कि प्रीटी कप है, तो हम बिगर कप नहीं लगाएंगे। तो थर्ड डिग्री जो सुपरलेटिव डिग्री हमारी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे क्या लगेगा उसके लिए, द प्रीटीएस्ट आएगा या द बिगेस्ट कप, तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा द प्रीटीएस्ट। ओके। अ फनी ग्रे कैट, तो अ फनी होगा, फिर सेकंड पे आ जाएगा अ फनियर और थर्ड पे आ जाएगा द फनीएस्ट। ओके। पार्ट सी लिसन एंड स्पेल। अब इस पूरे यूनिट में से आपको कहीं से भी 10 जो वर्ड्स हैं वो लिखवाए जाएंगे, आपने अच्छे से स्पेलिंग भी लर्न करने हैं और यहाँ पे वो आपको लिखवाए जाएंगे जो आप लोगों ने ज़बानी लिखने हैं। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, आपने अच्छे तरीके से इस चीज़ को लर्न करना है पूरे यूनिट को, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।